جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو کائنات بنانے والا ہے، جو کائنات چلانے والا ہے۔ تمام تر مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تمام تر مخلوقات کی تمام تر ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تمام تر مخلوقات میں موجود صفات کے اوپر کلی اختیار رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کوئی بھی مخلوق اپنے اندر موجود صفت کے اعتبار سے خود مختار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے انسان کو نفع دے سکے یا نقصان دے سکے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر شامل نہ ہو۔ تمام تر مخلوقات اپنے میں موجود تمام تر صفات کے ساتھ مل کر کسی شخص کو نفع دینا چاہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو نفع نہ دینا چاہے، تو یہ ساری مخلوقات اس کو نفع نہیں دے سکتی۔ اسی طرح سے تمام تر مخلوقات اپنی تمام تر طاقتوں اور صفات کے ساتھ مل کر کسی انسان کو نقصان دینا چاہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو نقصان نہ دینا چاہے تو یہ اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ ساری کی ساری مخلوقات محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ساری کی ساری مخلوقات سے بے نیاز ہے۔ آگ جلانے میں اللہ تعالیٰ کے امر کی محتاج ہے، پانی پیاس بجھانے میں اللہ تعالیٰ کے امر کا محتاج ہے، دوائی شفا دینے میں اللہ تعالیٰ کے امر کی محتاج ہے۔ اسی طرح سے آپ کے اکاؤنٹ میں، ہاتھ میں، جیب میں پڑا پیسہ سکہ آپ کو نفع دینے میں اللہ تعالیٰ کے امر کا محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پیاس بجھانے میں پانی کے محتاج نہیں ہے، بھوک مٹانے میں کھانے کے محتاج نہیں ہے، شفا دینے کے لیے دوائی کے محتاج نہیں، آپ کو نفع دینے کے لیے اسباب کے محتاج نہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور ساری کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سارے کے سارے انسان ایک جگہ جمع ہو جائیں اور وہ مانگے اللہ تعالیٰ سے جو جو کچھ وہ سوچ سمجھ سکے، جو جو کچھ ان کی خواہش پیدا ہوئی دل میں، جو امیجنیشن سے گزرا، جو آنکھ نے دیکھا، جو دل میں تڑپا، سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے، وہ اتنی بڑی بادشاہی کا مالک ہے، اتنے بڑے کلی اختیارات کا مالک ہے کہ وہ سارے کے سارے انسانوں کو جو کچھ انہوں نے مانگا ہے اس سے بڑھا چڑھا کے اپنی شان کے مطابق، اپنی بادشاہی کے مطابق نواز دیں، تو بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر اتنی کمی نہیں آتی جتنی پوری روئے زمین کا پانی جمع کر کے صرف ایک سوئی کا نکا ڈبو کے باہر نکال لیا جائے۔ سوئی کا نکا جو پانی باہر لے کے نکلا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ کمی آ گئی ہو، لیکن وہ اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے، وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کے اختیارات اتنے بڑے ہیں کہ اس کے خزانوں کے اندر اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو پسند کرتا ہے، نہ شکروں کو پسند نہیں کرتا۔ شکر گزاروں کی نعمتیں بڑھاتا ہے، نہ شکروں کی نعمتیں کم کرتا ہے۔ شکر گزار کے پاس وہ کچھ بھی آ جاتا ہے جو اس کے پاس موجود نہیں ہے، اور نہ شکرے کے پاس سے وہ کچھ بھی چلا جاتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ شکر گزاری کیا ہے کہ نعمت دینے والے کا احسان مند ہونا، اور جو نعمت دی گئی ہے اس کی قدر و قیمت کا احساس ہونا اور اس کا صحیح استعمال کرنا۔ ناشکری کیا ہے کہ نعمت دینے والے کا احسان مند نہ ہونا، اس کو اپنا حق سمجھنا، اس کو اپنی جو ہے وہ ایفیشنسی سمجھنا، اس کو اپنی قابلیت سمجھنا، اس کو اپنا جو ہے وہ پیدائشی حق سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ پھر کیا ہو گیا، مجھے دیا تو اس کو بھی دے دیا۔ یہ ناشکری ہے۔ نعمت دینے والے کا احسان مند نہ ہونا، اور جو نعمت دی گئی ہے
उसकी कदर कीमत का एहसास ना होना कि फिर क्या हो गया, सेहत ही दी है, फिर क्या हो गया, 2 हाथ ही दिए हैं, फिर क्या होगा, 2 आंखें दी हैं, सबको दी हैं, उसको भी दी हैं, कान दिए हैं, दिमाग दिया है, जिस्म दिया है, सेहत तंदुरुस्त, फिर क्या होगा, सारी दुनिया फिर रही है, अलग क्या दिया मुझे, इसमें अलग क्या लग गया मुझे। और नेमत का सही इस्तेमाल ना करना नाशुक्रिया। कि अल्लाह ताला ने ताकत दी, वक़्त दी, सलाहियतें दी, मजबूत जिस्म दिया, हर तरह से आज़ादी दी, बाख्तियार बनाया, और इंसान उसको गलत इस्तेमाल करे, यह नाशुक्री है। अल्लाह ताला ने इंसान को और जिन्नात को बाख्तियार बनाया चूज़ करने में, रास्ते दोनों बता दिए हैं। मेरा पसंदीदा रास्ता ये है, ये मेरा नापसंदीदा, इस पे चलोगे नापसंदीदा पे तो ये पनिशमेंट है, ये पसंदीदा इस पे चलोगे ये रिवार्ड है, और ये एक मखसूस टन्योर है तेरे पास, मखसूस पैकेज है तेरे पास। ना हमसे पहले परमानेंट थे, ना हम हैं, ना हमसे बाद में आने वाले, ना उनके बाद आने वाले, ना उनके बाद आने वाले। हर एक शख्स एक मखसूस टन्योर के लिए यहाँ पे आता, उस टन्योर में वो क्या करके जाता है वो चीज़ मैटर करती है। जो सिर्फ दुनिया मांगते अल्लाह ताला उनको वो दे देता, जो दुनिया और आखिरत दोनों मांगते अल्लाह ताला दोनों दे देता। वो इतने बड़े खजानों का मालिक है। शुक्रगुजार लोग अपने गिर्द नेमतों को अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं, खींचते हैं मकनातीस की तरह, और नाशुक्रे लोग जो पास होता है उसको भी जो है वो एंजॉय नहीं कर पाते, वो भी खो देते। शुक्रगुजारी एक ऐसा एटीट्यूड है कि जैसे ही हम एटीट्यूड के अंदर आते हैं शुक्रगुजारी के, तो हमें लगता है कि हर बंदा हमारी लाइफ के अंदर एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दे रहा है, बेहतरीन तरीके से हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। आगे बढ़ने के लिए जो जो कुछ रिक्वायर्ड है वो मेरे पास मौजूद है, या जो जो कुछ मेरे पास मौजूद है उसके साथ वहाँ पहुँचा जा सकता है जिसका मैं सोच रहा हूँ। और उसको लगता है कि हर बंदा मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और मैं एक ब्लेस्ड पर्सन हूँ। ये ग्रेटिट्यूड वाले एटीट्यूड की नज़र में जो है वो सारी चीज़ें आती। वहीं पे खड़े हुए नाशुक्रा बंदा जो है उसको लगता है मेरे से बढ़ के मजलूम ही कोई नहीं है, हर बंदा बस मेरी टांग खींचने में लगा, जो कुछ मेरे पास मौजूद है उसके साथ वहाँ नहीं जाया जा सकता, जो फलां के पास है, जो फलां के पास है उसके साथ ये मुमकिन है, इसके साथ मुमकिन नहीं। और जो उसके पास होता है उसको उसकी वक़्त, कीमत, उसकी कदर का एहसास ही नहीं होता कि ये कितनी कीमती चीज़ है, इसके साथ क्या कुछ हो सकता है। नाशुक्रा बंदा सबसे बड़ा नुकसान अपनी ज़ात का करता है, फिर ABC किसी का और का करता है। तो इसलिए हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करें, जो जो ब्लेसिंग्स आपके पास मौजूद हैं। हम इसको करते करते, सीखते सीखते, बोलते बोलते, सुनते सुनते, ये हमारी शख्सियत का अहम तरीन पहलू बन जाएगा कि हम हर हाल में शुक्र अदा करने वाले बन जाएंगे। इसके असरात यहाँ पे भी मिलेंगे आपको, इसका फल यहाँ पे भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। दोनों जन्म जो ग्रेटिट्यूड को अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाएगा, इसलिए इस इंटेंशन के साथ कि ये मालिक व खालिक, इस कायनात को बनाने वाले और चलाने वाले को पसंद है, इसलिए मैं ग्रेटिट्यूड लेकर आ रहा हूँ। अल्लाह ताला यहाँ के भी सारे समरात देगा, आखिरत के भी देगा। सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में रखी हैं, कुछ भी चीज़ इनकी मुतबादल नहीं। अपने वक़्त को, चीज़ों को जब आप चेंज करने का इरादा कर लें, फिर आप उसके ऊपर अपनी सलाहियतें लगानी शुरू कर दें, कोई बैंक अकाउंट उसका मुतबादल नहीं हो सकता। आपने देखा जिन लोगों ने एक इसी
मखसूस पैम के साथ एक बेहतरीन इम्पैक्ट क्रिएट किया इस दुनिया के ऊपर। बहुत बड़ी कोई जिसको आप सक्सेस कह लें क्रिएट की, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन क्रिएट किया, बहुत बड़ा मुस्बत इम्पैक्ट क्रिएट किया इस प्लानट को खूबसूरत बनाने में, यहाँ पे लाइफ को आसान बनाने में, दूसरों के लिए आसानियाँ बांटने में, रोज़गार के, रिज़्क़ के, बाकी आसानियाँ पैदा करने में, लाइफ को आसान बनाने में। उन सब की शख्सियत के अंदर आपको मिलेगा कि वो सलाहियतों के इस्तेमाल के एतबार से अलग थे। वो टेंजिबल जो चीज़ें थी, जिस्मानी तौर पे आपको, या जो माली वसाइल थे उसके एतबार से अलग नहीं थे, बल्कि वो सलाहियतों के इस्तेमाल के एतबार से अलग लोग थे कि उन्होंने किस तरह से अपनी उन सलाहियतों को कितनी मुस्तैदी के साथ, किस तरह से उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। उस चीज़ ने वो इम्पैक्ट क्रिएट करने में उनका साथ दिया। हर सूरज जो चढ़ता है वो डूबता है, हर अगला दिन एक नया चैप्टर होता है हमारी लाइफ के अंदर। हम चीज़ों को किस तरह से लेके चल रहे हैं, किस तरह से हम चीज़ों को एक इम्प्रूव कर रहे हैं, क्या हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारी जो माइंड है उसके अंदर क्या चल रहा है, इंटेंशन क्या है, किस तरह से हम अपने दिन को ले रहे हैं। जो इसको मुस्तद्दी के साथ, इसको अपने हर दिन को गुजरे कल से बेहतर बनाने के माइंडसेट के साथ, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करने के माइंडसेट के साथ, कंट्रीब्यूशन देने के माइंडसेट के साथ करते हैं, यकीनन वो हर दिन एक नए दौर के अंदर दाखिल होते जाते हैं। अगर फर्ज कर लो आज के दिन में मेरी शख्सियत के अंदर कोई कमी बेशी भी है, कोई आलसी भी है, कोई तंग नजरी भी है, कोई उसके अंदर जो सलाहियतों के एतबार से भी दर्जा कम है या स्किल के एतबार से कोई दर्जा लो है, तो अगले दिन वो बेहतर होगा। कोई चीज़ नई ऐड होगी, कोई चीज़ रिमूव होगी, जब हम उसको एक नए चैप्टर के तौर पे लेंगे। और अगर हम समझेंगे कि कुछ नहीं, बस जिस माइंडसेट के साथ आ गए, जो चीज़ें हैं, जब कभी दिल किया तो इम्प्रूव करने का सोच लिया, फिर हडारामी की और फिर चेंज हो गई। जितने लोग इस आज के दिन में भी आप देखो, जो लोग इस दुनिया के ऊपर बेहतरीन इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं या इसको लीड कर रहे हैं, या जिसको हम 1% क्लब कहते हैं, वो ये गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़बान को, आँख को, कान को, वो इस हिस्से को इस्तेमाल करके लीड कर रहे हैं। तो इसलिए हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना, बेहतर करना। जो भी कमी कुताही कल थी, कोशिश करें वो आज ना हो, जो आज है कोशिश करें वो कल ना हो। आप ये देखें कि यही ट्रैक जब से हमने ये शुरू किया, जिन लोगों ने कंसिस्टेंसी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ हर दिन इम्प्रूव किया है, आज वो बिल्कुल डिफरेंट शख्सियत है। और जिन्होंने बस इसको मजबूरी समझ के या कुछ ऐसा कि ठीक है कान बंद रख के किया, तो भी उनका भी ठीक है। कोशिश करें हर दिन अपने इस माइंडसेट के साथ कि हम अपने आज के दिन को जो है वो इम्प्रूव करेंगे, बेहतर करेंगे। उसके अंदर जो कल मेरे पास को कमी कुताही रहेगी, आज मैं नहीं रहने दूंगा। कल जो चीज़ मैंने बेहतर ट्रैक के ऊपर पकड़ी है, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा, उसको मैं मज़ीद इम्प्रूव करूंगा। जब हम एक झटक के एक नए तरह से एक दिन के अंदर दाखिल होंगे तो हम इसको इम्प्रूव करेंगे। और अगर हम इसको एक लेबर माइंडसेट के साथ ही अपने दिन को लेके चलेंगे कि बस घंटे पूरे करने हैं, इतने बजे से इतने बजे तक, बस ये मेरा टाइम पूरा हो गया, कंपनी के सिरे मेरे चढ़ गई, अब मुझे क्या इससे। वो लोग किसी का नुकसान नहीं, अपना नुकसान कर रहे थे कि वो सलाहियतें, वो सेहत, वो तंदुरुस्ती, वो सोचने समझने का दिमाग, वो तमाम तर जो कीमती तरीन अनमोल तरीन चीज़ें हैं, उसको वो ज़ाया कर रहे हैं। किसी का भी कोई नुकसान नहीं कर रहे, वो अपने आप के साथ कर रहे हैं। हम में से वो तमाम लोग जो ये चाहते हैं कि हम अपनी जो एक इकाई है उसको एक बेहतरीन तरीके से
लीड करें, बेहतरीन तरीके से उसको एक एग्जाम्पलरी जो है वो एक पर्सन बनाने की जो है वो पूरी कोशिश करें। तो उनको चाहिए कि वो हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जब दिन स्टार्ट होता है ऐसा नहीं है कि बस वही जो एक कंटिन्यूटी चलती है, कल की आ रही थी आज फिर दोबारा आ गई। कल अगर कोई कमी कोताही रह गई थी आज वो नहीं रहनी चाहिए, उसको जो जोड़ना चाहिए, उसको मजीद इम्प्रूव करना चाहिए। करेंगे जी सारे क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं, हमने जो प्राइम के ऊपर काम शुरू किया हुआ था, तो आप सब इस चीज़ पे हैं। हम यहाँ से सारे इकट्ठे चल के देखें या मैं सबके पास बारी बारी आ जाऊँ? जो ये समझते हैं कि मैं आप सब लोग अपने अपनी चेयर्स पे चले जाएं, मैं सबके पास बारी बारी आ जाऊं, वो हाथ खड़ा करें। मेजॉरिटी उन्हीं लोगों की है। ठीक है, हम दुआ के बाद सारे अपने अपनी जगह पे चले जाएं, मैं सबके पास बारी बारी आता हूँ। ठीक है जी। बाकी हर बंदा जो है वो अपने अपनी वक़्त ताकत सलाहियतों का खुद अमीन बने, खुद उसका ज़ामन बने। हमने बड़े सारे डिसीजन मेकिंग जो है उसके अंदर सिर्फ इसलिए तख़ीर भी कर दी या उसको पोस्टपोन कर दिया, डिले कर दिया, या वो नहीं की कि उसके अंदर किसी की अकाई जो है वो डिस्टर्ब ना हो, इंडिविजुअलिटी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए इस चीज़ का हर बंदा जो है वो एहसास रखते हुए अपने हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करे। और जो इसका माइंड है इस कंपनी का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अंदर अपना इनपुट दें, उसके अंदर एक अपना रोल प्ले करें, चीज़ों को इम्प्रूव करने के अतबार से, अपने डोमेन के अतबार से जो आप सोचते हो समझते हो उसको उसके अंदर लेके आओ। इसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो लोग बेहतर तरीके से अपनी जगह बना सकेंगे जो दूसरों को मजबूत करेंगे। आज हम अब इस इंटेंशन के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं कि हम अपने आज के दिन को गुजरे हुए कल से बेहतर बनाएंगे। करते हैं जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अरहमुर राहिमीन या खालिक या बारी या मुसव्विरुल लहुल अस्माउल हुस्ना। या अल्लाह तेरा करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्र है, तेरे रहम करम फजल और नेमतों की जो बारिश है इनको हमेशा ऐसे ही जारी और सारी रखना। या अल्लाह हमें हमेशा अपना शुक्र गुजार बंदा बना। या अल्लाह हमारा ईमान है इस कायनात को बनाने वाले भी आप हैं, इसको चलाने वाले भी आप हैं। या अल्लाह हमें हमेशा अपने पे तकवा करने वाला बंदा बना। या अल्लाह हमारी वक़्त ताकत सलाहियतों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमें अपनी वक़्त ताकत सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाला बना। या अल्लाह जिसका जो भी मामला मसला मुश्किल परेशानी है तो बेहतर इल्म गैब रखने वाला, अपने गैब के लामुतनाही खजाने से उसकी मदद और रहनुमाई फरमा। या अल्लाह हम कम अकल जाहिल है, तू कमल हिकमत वाला है, अपने हिकमत के लामुतनाही खजानों से हमारी रहनुमाई फरमा। या अल्लाह हम कमज़ोर हैं, तू ताकतवर है, अपने ताकत के लामुतनाही खजानों से हमें मजबूत फरमा। या अल्लाह इस कंपनी से जुड़े हर शख्स को रिज़्क़े हलाल से मालामाल फरमा। या अल्लाह सबके माल जान की हिफाजत फरमा, इसकी साइटों पर काम करने वाले लेबर के माल जान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें अपनी वक़्त ताकत सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करके अपने आज के दिन को बेहतरीन जानदार शानदार प्रोडक्टिव बनाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम तेरे और तेरे पाक नबी के नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ कर रहे हैं, हर तरह की खैर के साथ मालामाल फरमा। आमीन आमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ठीक है जी, शाबाश।